Welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 7. And the name of your chapter number 7 is Festivals Fun. It means in this chapter, we are going to discuss about different types of festivals which we use to celebrate. Okay. So let's see the concept overview. National festivals and religious festival. Okay. In this chapter, we are going to see two types of festivals, that is national festival and our religious festival. Okay. And what are the curricular goals? Learn about different festivals celebrated in India. Okay. In this chapter, we are going to see how many types of festivals we Indians used to celebrate. Okay. Then understand the cultural, social and religious importance of festivals and why we celebrate these festivals. What are the cultural, social and religious background of them. Okay. Respect diversity and traditions of other, and as well as we are also going to learn how we are going to respect the diversity of our country, India, and our traditions. Okay. Now, in India, many groups of people coming from different caste, religion, culture and language background live together. We live in a country named as India. हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट हैं जिनका अलग अलग कस्टम है और ट्रेडिशन है, वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, ठीक है. They celebrate many different festivals. अब जब उनके बीच में इतना डिफरेंशिएशन है, इट मीन्स वो फेस्टिवल्स भी अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. बट अलग होके भी हम सब एक हैं, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड लेवल पे हमारी कंट्री इंडिया को कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ओके. In India, mainly two types of festivals are celebrated. They are national festivals and religious festival. Okay, India में my dear students हम लोग दो टाइप के festivals को celebrate करते हैं, religious festivals को और national festivals को. Okay, so first of all we are going to discuss about national festivals. ठीक है, तो national festivals my dear students वो festivals होते हैं जो हम पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग कीजिए, डजंट मैटर. आप इंडिया के रेसिडेंट हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल. ठीक है, तो पहला नेशनल फेस्टिवल है जो वी इंडियंस यूज्ड टू सेलिब्रेट, इट इज आवर रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे क्या है, देखिए. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day in 1950 India become a republic. ठीक है, रिपब्लिक डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को हर साल, यानी 26 जनवरी को. ठीक है, इसी दिन हमारी कंट्री इंडिया को रिपब्लिक देश घोषित किया गया था. ठीक है. On this day, a grand parade is taken out at Rajpath in which our armed forces and school children participate. Republic Day के दिन क्या होता है, हमारे राजपथ में जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे परेड निकलती है जिसमें हमारे तीनों फोर्सेस के लोग और साथ ही साथ आप स्कूली बच्चे भी क्या करते, पार्टिसिपेट करते हो. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट एट द परेड. जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है, वो हमारे तीनों फोर्सेस से क्या लेते हैं, सल्यूट लेते हैं. ठीक है. So you can say this is the scene from our Republic Day parade. Okay. Now the next national festival which we Indian used to celebrate is Independence Day. Okay. So what is the meaning of Independence Day? Let's see. On 15th August every year Independence Day is celebrated. Okay. And on every year 15th of August we Indian people used to celebrate our Independence Day. On this day in 1947 India became free from British rule. आज ही के दिन मीन्स 15 अगस्त के दिन ही 1947 में हमारी कंट्री इंडिया को ब्रिटिश से क्या हुआ था, आजादी मिला था. The Prime Minister of India hosts the national flag at the Red Fort and addresses the nation. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं और साथ ही साथ पूरे नेशन से बात करते हैं. ठीक है. Now the third our national festival is Gandhi Jayanti. Okay, so let's see Gandhi Jayanti. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October एवरी ईयर. गांधी जयंती हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 2nd October को. ठीक है. ऑन दिस डे इन 1869 महात्मा गांधी वॉज बोर्न. इसी दिन यानी 2 अक्टूबर को 1869 में महात्मा गांधी पैदा हुए थे. ठीक है. He was a great freedom fighter. He is called the father of the nation. और हमारे देश के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी ये थे, इसीलिए गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है. ठीक है. गांधी जी शेयर्स हिज बर्थडे विद आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री. गांधी जी ने अपना बर्थडे हमारे कंट्री इंडिया के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उनके साथ इन्होंने उनके साथ ही अपना बर्थडे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी शेयर करते हैं. यानी 2 अक्टूबर के दिन सिर्फ गांधी जी का बर्थडे नहीं है, 2 अक्टूबर के दिन हमारे इंडिया के
जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी बर्थडे है, ठीक है। हिज बर्थडे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डे, तो दोनों लोग का बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स माय डियर स्टूडेंट्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा दशहरा, ठीक है। तो दशहरा क्या है, देखिए, Dashera is an important festival of Hindus. It is celebrated every year with great pomp and show to honor Lord Ram's victory over the demon king Ravan. ठीक है। तो दशहरा हिंदू रिलीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। दशहरा बहुत ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दशहरा के दिन ही, दशहरा के ओकेजन पे हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि लॉर्ड राम की विक्ट्री हुई थी रावण के ऊपर, ठीक है ना। The story of Ram's life is especially enacted in Ram Leelas and other theatrical performance are held for 10 days, ठीक है। तो लॉर्ड राम के लाइफ को और बैटल बिटवीन लॉर्ड राम एंड डीमन किंग रावण, इनके बीच के इस बैटल को 10 दिन की पूरी एक रामलीला चलती है, उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। On the 10th day, effigies of Ravan and his brother Kumbhakaran and son Meghnad are born to mark the end of evil, ठीक है। तो 10वें दिन दशहरा के क्या होता है, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के स्टैचूज को जलाया जाता है, ठीक है। So you can see this is the picture of burning Ravan. Okay. Now after Dashera, we people of India used to celebrate Diwali festival. Okay. So Diwali is called the festival of light. Okay. So Diwali festival is called the festival of lights. Okay. People clean their homes and shops and decorate them with their earthen diyas and a small electric bulb. दिवाली के ओकेजन पे सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, दिया जलाते हैं और लाइट्स लगाते हैं, ठीक है। On Diwali night they lit oil lamps, candles and bulbs, ठीक है। वो ऑयल लैम्प्स लगाते हैं, कैंडल्स और बल्ब्स जलाते हैं, ठीक है। पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग सेइंग हैप्पी दिवाली, पीपल एक दूसरे को इस दिन क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली करके विश करते हैं। दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा फॉर वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी एंड गॉडेस लक्ष्मी फॉर वेल्थ एंड विजडम, और दिवाली के दिन गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेशा की पूजा की जाती है। Children express their joy by bursting firecrackers. The Hindu business year starts on Diwali, ठीक है। इस दिन आप बच्चे क्या करते हो, पटाखे फोड़ते हो। दिवाली पे ही हिंदू रिलीजन के लोगों का बिजनेस ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। So you can see this is the picture of Diwali celebration. Okay. Now the next type of festival which फूड एंड अदर इटेबल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर, और इस दिन गुरु पूरब के दिन खाना और बाकी जो जरूरत की चीजें गरीबों के बीच में सिख कम्युनिटी के लोग बांटते हैं, ठीक है। द सिख गो टू गुरुद्वारा टू लिसन टू गुरबानी, ठीक है। तो सिख कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजियस प्लेस यानी गुरुद्वारा में जाते हैं और गुरबानी सुनते हैं, ठीक है। दे ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, इस दिन सिख कम्युनिटी के लोग कॉमन किचन से खाना खाते हैं जिसको लंगर कहा जाता है। सो यू कैन सी दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ गुरु पर्व, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल विच पीपल ऑफ इंडिया यूज्ड टू सेलिब्रेट इज ईद उल फितर, ओके। See, Eid al-Fitr is the most important festival of Muslim. Eid comes after the holy month of Ramzan. The Muslims keep fast during this month. तो ईद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये एक मंथ के फास्टिंग पीरियड जिसे हम रमजान कहते हैं उसके बाद आता है, ठीक है। ऑन ईद पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड ऑफर नमाज इन मॉस्क, ईद के मौके पर लोग नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं जाके मॉस्क में। They give alms to the poor and exchange greetings saying ईद मुबारक, ठीक है। ये क्या करते हैं, गरीबों के बीच में जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटी की चीजें उन्हें बांटते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कह के विश करते हैं। वर्मिसेली पुडिंग, सेवई, स्पेशल स्वीट डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, ठीक है। तो सेवैयां बनाई जाती है ईद के ओकेजन पे, ओके। सो यू कैन सी द चिल्ड्रन आर सेलिब्रेटिंग द ईद, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज होली, ओके। Holi marks the end of winter and the start of spring. It generally comes in the month of March. It is called the festival of colors. होली फेस्टिवल का मतलब होता है कि ठंडियों का मौसम खत्म हो चुका है और स्प्रिंग सीजन आ रहा है, ठीक है। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है, ठीक है। होली सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ भक्त प्रहलाद, ठीक है। होली को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग भक्त प्रहलाद के फॉर्म में, मीन्स होली के दिन भक्त प्रहलाद को भी याद किया जाता है, ठीक है। ऑन होली पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड अप्लाई होली कलर्स गुलाल on one another, sing, dance and have lots of fun together, ठीक है। होली के दिन क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर
कलर, लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं जिसका नाम गुलाल है, ठीक है, और एक साथ क्या करते हैं, डांस करते हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। ए स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। तो होली पे हम लोग क्या खाते हैं, गुजिया खाते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर these two children are playing Holi. Okay. Now the next religious festival is celebrated by Indian people, that is Christmas. Okay. So Christmas क्या है? Christmas is the festival of Christians. It is celebrated on 25th December every year. तो Christmas हमारे Christian community के लोगों का फेस्टिवल है और ये हर साल 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. It marks the birthday of Lord Jesus Christ. 25 दिसंबर को क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मानते हैं कि आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, ठीक है. Christians decorate their houses with small and beautiful Xmas trees. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, ठीक है. They go to the churches at midnight to offer special prayer. Children believe that Santa Claus leaves gifts for them under the Christmas tree. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजियस प्लेस चर्च में जाते हैं, ठीक है, और ये अपना प्रे ऑफर करते हैं, ठीक है. साथ ही साथ इन्हें इन लोगों की ये भी थॉट है कि सेंटा क्लॉज इनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं. ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर. So national festival is celebrated all over the country. Okay, national festival are those festival which is not only celebrated by a particular group of people. No, it is celebrated by entire Indian people. Okay, then Republic Day is celebrated on 26th January every year. Republic Day हम कब celebrate करते हैं, हर साल 26 जनवरी को. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर, और गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल, ठीक है, और हर रिलीजन के लोग अपना अपना रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. अब कौन से फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, दिवाली. Eid al-Fitr is the most important. Eid al-Fitr is the most important festival of Muslims. Okay, so here, my dear student, our chapter ends. Now just go thoroughly through this chapter and complete all your exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.